Hello everyone, welcome back. Hope you all are doing well. Today we will discuss the next topic of economic botany, that is pulses. Firstly, we will discuss about what are pulses, then we will focus on chickpea in this lecture. Pulses are basically leguminous crops which are harvested solely for the dry seeds, for their dry seeds. So ये ऐसी leguminous crops हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ dry seeds के लिए grow करते हैं और ये जो dry seeds हैं they are consumed and they are rich source of proteins और इन्हें poor man's meat भी कहा जाता है और इस लेक्चर में हम पल्सेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे चिक पी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Firstly, what are pulses? Pulses are basically leguminous crops which are solely harvested for their dry seeds. So ऐसी leguminous crops हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ dry seeds के लिए cultivate करते हैं. And most common जो हमारे पास pulses हैं, these are chickpea, urad bean, lentil, kidney bean, which are then comes dried common beans, etc. So these are some most common pulses that we use in our daily life as a staple food. The next, there are some pulses which are harvested green, जिन्हें हम green form में consume करते हैं. For example, we have green peas, then we have green beans. So जिसे vegetable crop भी कहते हैं, frost bean भी कहते हैं इसे. So ये harvested green कहते हैं, means इन्हें हम consume करते हैं in the green form. Next comes groundnut. Groundnut is again a pulse crop और इसे grow किया जाता है especially for oil extraction, and it is rich in various nutrients और इसमें बहुत सारे important fatty acids भी present होते हैं. Next comes there are some pulse crops, leguminous crops which are cultivated for fodder, जो कि सिर्फ और सिर्फ चारे के लिए यूज़ की जाती है to feed domestic animals. Like we have clover. This is the program which shows clover. Then comes this alfalfa. So this is these are the two most important fodder crops which belongs to this leguminous family. Next we have soya bean. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का. इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन और इससे दोनों ही मिलता है हमें प्रोटीन एज वेल एज क्रॉप और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसे हम पल्स की फॉर्म मीन्स जो दालें हैं दाल की फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. लाइक वी हैव दीज ड्राई सीड जिन्हें हम रोस्ट करके खा सकते हैं. देन वी हैव दिस सोया सॉस विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोयाबीन. देन कम सोया मिल्क which is very important source of proteins. Then next is soya oil, soybean oil, refined oil, वो इससे मिलता है. Next we have this product that is soya paneer, commonly known as tofu. So these are various items which are prepared from this important leguminous crop soybean. So that's why जो proteins हैं ये बहुत rich source हैं. जो legumes हैं they are rich source of protein, so that's why these are known as poor man's meat. तो इन्हें commonly poor man's meat भी कहा जाता है. So this is the introductory part of the legumes or pulses. Next comes legume seeds. As we know that legumes belongs to the family Fabaceae. Fabaceae के member हैं ये, जिसे पुराने समय में Leguminaceae भी कहा जाता था और ये है second largest family after Poaceae. Poaceae है grass family. उसके बाद ये दूसरे नंबर की largest family है which is a source of food and fodder. ये फूड और फॉडर दोनों का ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. और जो पल्सेस हैं उनके जो सीड्स होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. सो दिस इमेज शोज legumes which are good source of proteins. Firstly we have black lentils, these are source of proteins. तो एक जो हाफ कप है उसमें 12 ग्राम प्रोटीन होता है. Then green lentil that contain 9 grams प्रोटीन पर हाफ कप. जो स्प्लिट बीन्स है उसमें प्रेजेंट होता है 8 ग्राम्स. नेक्स्ट वी हैव चिकपी, इसमें प्रेजेंट होता है 8 ग्राम्स. देन नेवी बीन्स 8 ग्राम, ब्लैक बीन्स 7 ग्राम्स, किडनी बीन्स 7 ग्राम्स. सो दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. लेगुमिनस क्रॉप्स सिर्फ सोर्स ही नहीं है प्रोटीन्स का, दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन enhancing or maintaining the soil fertility through the symbiotic nitrogen fixation process. जो biological nitrogen fixation का process है उसमें भी leguminous crops बहुत ही important role play करती है to fix
atmospheric nitrogen. So जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दे इनहेबिट्स द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, उनके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं ये, एंड दे हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय दिस प्लांट्स, जैसे कि नाइट्रेट है. सो इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और जो पल्सेस हैं उसमें मोस्ट कॉमन है राइसोबियम. सो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें कहा जाता है कॉमनली डायज़ोट्रॉप्स. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन्हें कहा जाता है डायज़ोट्रॉप्स, एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट दैट एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन इनटू मेटाबोलाइजेबल फॉर्म. ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को जिससे कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाएँ. एंड एज वी नो दैट नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स. जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नाइट्रोजन से बनते हैं, नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड विल गिव राइज टू प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनाते हैं प्लांट बॉडी के जो भी वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं. प्लांट बॉडी बिल्ड करने में प्रोटीन हेल्प करता है. नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ पल्सेस. पल्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. फर्स्टली वी हैव खरीफ सीजन पल्सेस, इसमें आता है अरहर जिसे कहा जाता है पिजन पी. देन नेक्स्ट कम्स उड़द बीन जिसे कहा जाता है ब्लैक ग्राम और माश भी कहते हैं. नेक्स्ट कम्स मंग बीन जिसे हम ग्रीन ग्राम कहते हैं, इट्स बोटैनिकल नेम इज़ विग्ना रेडिएटा. नेक्स्ट वी हैव लोबिया बीन जिसे कहा जाता है काउपी. Next comes kulthi, commonly known as horse gram, and finally comes moth bean. This is the photograph which shows moth bean. Next जो classification का type है वो है रबी सीजन pulses. इसमें आता है हमारे पास ग्राम जिसे चना कहते हैं, then lentil है, pea है, lathyrus है, and rajma है. So these are pulses which are grown under rabi season. Next comes the important leguminous crop, that is gram or chickpea, commonly known as chana in Hindi. Its botanical name is Cicer aratinum, and there are some English names which are used for this legume, that is gram, Bengal gram, chickpea, garbanzo bean, Egyptian pea, sesame bean. Next we have some Indian names like chana, jeevana, chana and jeevana. These are Hindi and Urdu names used for this crop. Next we have chankha, it is a Sanskrit name. Next is katalai in Tamil, chania in Gujarati, and chola in Bengali. So these are some names, Indian names used for this crop. It belongs to family Fabaceae, Leguminaceae भी कहते हैं इसे. Next, the chromosome number. We have two different categories of gram. One is Kabuli gram जिसका diploid chromosome number है 16, and we have Desi gram जिसका diploid chromosome number है 14 or 16. So this is the brief information of gram or chickpea. Chickpea is the most important leguminous crop in India. और इंडिया में जो इसका प्रोडक्शन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 64% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल चिकपी प्रोडक्शन. तो अगर इंडिया अकेला ही 64% प्रोड्यूस करता है अगर हम वर्ल्ड की बात करें. एंड इट इज़ द थर्ड मोस्ट वाइडली ग्रोन लेग्यूम क्रॉप. तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये जो लेग्यूम क्रॉप जो ग्रो की जाती है. एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पल्स क्रॉप विच इज़ नॉन एंड कल्टिवेटेड फ्रॉम एंशियंट टाइम बोथ इन एशिया एंड यूरोप. तो एशिया और यूरोप दोनों ही जगह में ये बहुत ही पुराने टाइम से उगाई जाती है, ये ग्रो की जाती है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. सो ये रिच होता है इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. Next comes origin and domestication of chickpea. So it is one of the most ancient or earliest cultivated crop, legume crop. Nearly 7,500 years ago, it was grown in the Middle East. कुछ evidences मिले हैं जिसमें पता चलता है कि nearly 7,500 years ago it was grown in Middle East. और मिडल ईस्ट में आती हैं हमारे पास ये कंट्रीज़ तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया. सो ये जो नेशंस हैं दे कम्स अंडर मिडल ईस्ट. एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय आर्यंस. ऐसा माना जाता है कि इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया है आर्यंस ने. और इसका कोई भी वाइल्ड रिलेटिव अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है. जो चिकपी है उसका कोई भी वाइल्ड रिलेटिव अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है. So this was the brief information regarding origin and domestication of chickpea. Next comes morphology.
If we talk about morphology of chickpea, it is a small sized plant which is herbaceous in nature. ये जो प्लांट होता है चिकपी का स्मॉल साइज का होता है, मच ब्रांच्ड है, दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, एंड इट इज़ herbaceous इन नेचर. और इसमें जो प्लांट की हाइट होती है दैट मे रीच अप टू 30 to 60 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो सकती है. And it has well developed root system, that is tap root. Tap root means the root which originates from the radicle of the embryo. और ये जो टैप रूट है it gets further differentiated into primary root and secondary roots. और ये बेयर करती हैं स्मॉल बीड लाइक आउटग्रोथ जिसे कहते हैं नोड्यूल्स. और ये जो नोड्यूल्स होते हैं दे आर हार्बर्ड बाय राइजोबियम. और जो राइजोबिया प्रेजेंट होता है इसमें दैट इज़ मीजोराइजोबियम विच इज़ प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ चिकपी. स्टेम इज ग्रेइश ब्रांच्ड होता है दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ एंड इज कवर्ड विद ग्लैंडुलर हेयर्स. और जो स्टेम होता है वो कवर होता है स्मॉल साइज्ड हेयर से विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर. लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड. लीव्स इसमें कंपाउंड होती है दैट वी कैन सी दिस फोटोग्राफ. और ये डिवाइड होती है छोटे छोटे पिन्नास में. और इस तरह के लीव्स को इम्पेरिपिन्नेट लीव्स भी कहते हैं. और जो नंबर एंड साइज है लीव्स का वो वेरी करता है कल्टीवार टू कल्टीवार. And these leaves are also covered with glandular hairs. So this is the brief information regarding the morphology of chickpea. Next comes flowers and fruits. If we talk about flower of chickpea, it is self-pollinating and have typical papillonaceous morphology. Self-pollinating flowers हैं ये, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है. और जो मॉर्फोलॉजी है फ्लावर की दैट इज़ पैपिलोनेशियस टाइप. और इसमें जो कलर है दैट वेरीज फ्रॉम वाइट टू शेड्स ऑफ पिंक एंड ब्लू. सो दैट दिस इज़ द फोटोग्राफ विच शोज द टिपिकल फ्लावर ऑफ दिस चिकपी. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स. इसमें 5 सेपल्स होती हैं जिसे हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, एंड 5 पेटल्स. और जो 5 पेटल्स है उसमें जो पोस्टीरियर वन है दैट इज़ द स्टैंडर्ड जिसे बैनर भी कहा जाता है. देन द 2 इनर पेटल्स विच आर नोन एज विंग पेटल बोलते हैं. और जो इनर 2 हैं विच आर फ्यूज्ड, ये जो 2 हैं ये फ्यूज होती हैं, इन्हें कहा जाता है कील पेटल. और इसमें जो स्टेमन्स हैं दे आर 10 इन नंबर. एंड जो कंडीशन है स्टेमन्स की उसे कहा जाता है डाइएडल्फस कंडीशन. इट मीन्स कि 2 बंडल होते हैं. इसमें एक जो बंडल है स्टेमन्स का दैट इज़ ऑफ 9 फ्यूज्ड स्टेमन और एक होता है सिंगल. सो इसमें हम 9+1 अरेंजमेंट देखते हैं स्टेमन की. डायडल्फस कंडीशन है एंड देयर इज़ 1 सिंगल कार्पल, और एक ही इसमें कार्पल प्रेजेंट होता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स फ्रूट इसमें होता है पॉड. फ्रूट इज़ पॉड. और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ यूजुअली 2 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कंटेन्स 2 सीड्स. सो जो इसका फ्रूट है वो है पॉड और इसमें यूजुअली 2 सीड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट कम सीड्स. सीड्स आर स्फेरिकल, रिंकल्ड एंड विद पॉइंटेड बीक. सो ये जो सीड है रिंकल भी होते हैं, ब्राउनिश होते हैं कलर में, और इसमें होती है एक पॉइंटेड बीक दैट वी कैन सी दिस फोटोग्राफ. और जो कलर ऑफ कोट है दैट मे वेरी फ्रॉम वाइट टू येलोइश ऑरेंज दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. ये येलोइश भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है, और वाइटिश भी हो सकता है सीड कोट इसका. और जो कॉटिलिडन्स होते हैं दे आर थिक एंड येलोइश इन कलर दैट वी कैन सी. ये जो पेयर ऑफ कॉटिलिडन होते हैं ये होते हैं येलोइश कलर के, एंड ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन. एंड दिस रीजन इज़ नॉन एज रेडिकल. और इसके नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोलते हैं. एंड आउटर वन इज़ द सीड कोट जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को. जो रेडिकल है दैट विल गिव राइज टू द फ्यूचर रूट सिस्टम. Next comes cultivation practices for chickpea. Firstly, we have climatic requirement. Chickpeas are rabi season crop. It means it prefer winter season for its growth. Low temperature requirements चाहिए इसे. और जो बेस्ट सूटेड एरियाज़ हैं इसकी ग्रोथ के लिए इट प्रेफर्स टू ग्रो मोस्टली इन द एरियाज़ हैविंग मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर पर एनम. सो ईयरली जो रेनफॉल है 60 to 90 सेंटीमीटर जहाँ पे होता है उस एरिया को ये प्रेफर करता है ग्रोथ के लिए. एंड इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन अंडर रेन फेड कंडीशन.
रेन डिपेंडेंट फार्मिंग पे ऊपर डिपेंड करता है ये, इसकी ग्रोथ रेन फेड कंडीशन में ग्रो करता है, बट इट आल्सो गिव्स गुड रिटर्न इफ़ द फील्ड्स आर इरीगेटेड। अगर हम फील्ड्स को इरीगेट करते हैं, मींस वाटर सप्लाई देते हैं, तो तब भी हमें अच्छी यील्ड मिलती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है। It prefers low to moderate temperatures. However, severe cold and frost are injurious to plant. मोस्टली ये लो टेम्परेचर को प्रेफर करता है, बट अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए, स्वेयर कोल्ड कंडीशन हो जाए, फ्रॉस्ट इंजरीज हो जाती हैं फिर प्लांट्स में, और वो फिर प्लांट्स को डैमेज करती हैं। मोस्टली जो एडवर्स कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर हम फ्रॉस्ट इंजरी की बात करें ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग की स्टेज पे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, मींस कोल्ड स्ट्रेस पड़ता है, सो इट बेसिकली अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा, सीड्स अच्छे नहीं बनेंगे, एंड फाइनली इट विल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ यील्ड, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। सो एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट कॉज क्रॉप फेलियर, जिससे क्रॉप फेलियर होता है, और दैट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉसेस टू द फार्मर, जिससे फार्मर्स को भी लॉस होता है। नेक्स्ट कम्स सॉयल। वैसे तो चिकपी प्रेफर करता है वाइड रेंज ऑफ सॉयल टाइप्स में ग्रो करना, बट जो मोस्ट प्रेफर्ड सॉयल टाइप है दैट इज़ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉयल्स, जिसमें जो पीएच की रेंज रहती है दैट इज़ 5.5 to 7, दैट दीज सॉयल्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सूटेबल फॉर द ग्राम कल्टिवेशन। तो ग्राम कल्टिवेशन के लिए ये सॉयल टाइप सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो देसी ग्राम होता है, देसी चना, दैट इज़ एबल टू परफॉर्म बेटर इवन ऑन पुअर सॉइल्स। जो पुअर सॉयल है मींस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स हैं, उसमें भी अच्छे से परफॉर्म करता है, अच्छे से ग्रोथ शो करता है देसी ग्राम, एज़ कम्पेयर टू काबुली ग्राम। जो काबुली ग्राम है वो जनरली कल्टीवेट किया जाता है सैंडी लोम सॉयल में। सो जो काबुली चना है उसे सैंडी लोम सॉयल में ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इफ़ इट टॉक अबाउट इट्स ग्रोथ, जो ब्लैक इसकी कल्टीवेशन होती है चिकपी की, दैट इज़ इन पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, और जो हैवी सॉयल होती है यूपी की उसमें भी इसको ग्रो किया जाता है। दैन द ब्लैक कॉटन सॉयल इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो ये जो सॉयल टाइप्स हैं उनमें भी चिकपी की कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट जो एक्सेसिव सॉल्युबल सॉल्ट्स, और अगर पीएच हायर है सॉयल का 8.5 से ज़्यादा, तो जो चिकपी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है, और ये जो सॉयल होती है इट इज़ अनसूटेबल फॉर ग्राम कल्टीवेशन। इफ़ द सॉयल इज़ सैचुरेटेड विद सॉल्युबल सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट है सॉयल में, और पीएच इज़ ग्रेटर देन 8.5, सो वो सॉयल सूटेबल नहीं होती है ग्राम की कल्टीवेशन के लिए। So this is the soil which is preferred mostly for chickpea cultivation is sandy loam to clay loam soil. Next comes cropping systems in India. Mostly chickpea is sown after harvesting kharif crops. जब हम खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम चिकपी को ग्रो करते हैं। जनरली ग्रोन मिक्सड विद wheat, barley, linseed, तोरिया, rapeseed एंड mustard crops in India. तो इनके साथ एज अ मिक्सड क्रॉप इसको ग्रो करते हैं। देन चिकपी कल्टीवेशन इन रोटेशन विद अदर सीरियल क्रॉप्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। जब हम चिकपी को ग्रो करते हैं किसी और क्रॉप्स के साथ इन रोटेशन, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इट हेल्प्स इन एडिंग द न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली जो रूट नोड्यूल्स हैं चिकपी के, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और उसको कन्वर्ट करते हैं टू दैट फॉर्म विच इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। एंड इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न डिजीजेस। सो बेसिकली chickpea cultivation helps in maintaining the soil health. In India, there are various methods, cropping system methods for chickpea, which are as follows. Firstly, खरीफ फैलो चिकपी। इसमें जो खरीफ की फसल है उसको हम बेचेंगे नहीं, और जो लैंड है उसे हम ऐसे ही प्लो करके छोड़ देंगे, एंड आफ्टर द अपकमिंग ऑफ सीजन, फेवरेबल सीजन, देन वी विल सो द चिकपी। जो गैप पड़ेगा एक, उसके बाद हम चिकपी को सो करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ राइस चिकपी, मीन्स राइस की क्रॉप के बाद चिकपी को ग्रो करेंगे। देन पर्ल मिलेट चिकपी, पर्ल मिलेट की जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद चिकपी को ग्रो करेंगे। देन सॉर्गम चिकपी,
Firstly, we will grow sorghum, then followed by chickpea. Then next comes maize chickpea. Firstly, we'll grow maize, then followed by chickpea cultivation. So these are the various cropping systems which are followed in India. Next comes sowing. For sowing, first step is preparation of fields. For preparation of field, it depends upon the type of soil and crop system followed. हम कौन सा क्रॉप सिस्टम फॉलो करते हैं और सॉइल का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करता है फील्ड प्रेपरेशन. Only one or two plowings are required in case of sandy loam soil, which is the most suitable soil for the cultivation of chickpea. And we also have to prepare some special seed beds in case of heavy soil. जहाँ पे जो soil है that is heavy, उसमें हमें special seed beds prepare करने पड़ते हैं ताकि उसमें proper aeration हो. And chickpea is highly sensitive to soil जिसमें कि aeration नहीं होती है. So ऐसी soil की chickpea sensitive है, so we have to prepare seed beds in case of heavy soil. Then in some region deep plowings is desirable during the monsoon in case of खरीफ fallow crop. जब हम खरीफ क्रॉप को स्किप करते हैं सो उस टाइम पे जो लैंड है दैट शुड बी डीप प्लोड ताकि उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो रिटेन रहे. नेक्स्ट द डेट ऑफ सोइंग वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू द रीजन ऑफ द कंट्री टू अदर. जो क्रॉप की सोइंग है यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द कंट्री. It varies from region to region, and there is one project which is carried out that is All India Coordinated Pulse Improvement Project. It is carried out at different centers, different places in the country over the last several years. ये जो project है इसमें study करते हैं हम कि जो crops के लिए suitable sowing season है वो कौन सा है. सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ इज़ मोस्ट सुटेबल और बेस्ट टाइम फॉर चिकपी सोइंग इन पेनिनसुलर इंडिया. जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें अक्टूबर बेस्ट टाइम है चिकपी की सोइंग के लिए. और जो सेकेंड फोर्टनाइट मीन्स आफ्टर 14 days और अ गैप ऑफ 2 weeks, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर इन नॉर्दर्न इंडिया, it is the best time or suitable time in northern India. And first fortnight of November is the most suitable in humid subtropical conditions of Tarai region. So ये different dates हैं sowing के लिए, different time period to get maximum yield. If we do early sowing, अगर हम sowing को early करते हैं that results in excessive vegetative growth. जो plant है वो vegetatively grow करेगा और जो प्रोडक्शन होगी, जो सीड्स की यील्ड होगी दैट विल बी वेरी पुअर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर सोइंग. नेक्स्ट द सीड कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और लोकल प्लो एट द रेट ऑफ 75 to 100 kg पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन द सीड साइज. तो एक हेक्टेयर में लगभग 75 to 100 kg सीड्स हम सो करते हैं एक हेक्टेयर में. Or a row of spacing of 30 to 40 centimeter and a plant density of 25 to 30 plants per square meter are desirable for chickpea farming. So proper spacing बहुत important है. So we follow this spacing method that is 30 to 40 centimeter spacing होगी plants के बीच में और जो density है per square meter में that is 25 to 30 plants to get maximum yield. The seeds are generally sown 8 to 10 centimeters deep in the soil. इतनी डीप सॉइल में इसको सो किया जाता है दैट इज़ 8 to 10 centimeter. एंड चिकपी इज़ अ हार्डी क्रॉप, टफ क्रॉप है ये एंड रिक्वायर लीस्ट पोस्ट कल्टिवेशन केयर. सो इसमें ज़्यादा सोइंग के बाद जो केयर की नीड होती है इसमें बहुत कम होती है. इट इज़ वेरी टफ क्रॉप, हार्डी क्रॉप है एंड क्रॉप बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विद इन 150 to 160 days. सो इतना टाइम पीरियड इसको लगता है टू कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल. और जो हार्वेस्टिंग इट इज़ डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल. सिकल की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग करते हैं. दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट और टूल वी कैन से जिसे सिकल कहते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज दराटी. एंड जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसे थ्रेश किया जाता है, थ्रेश्ड और विनोड एंड ड्राइड बिफोर स्टोरेज. और प्रॉपर स्टोरेज करने से पहले उसे अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है, देन वी कैन स्टोर इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. Next step is manuring. It means adding the farmyard manure in the field to increase the fertility of soil
and to get maximum yield. Manuring with farmyard manure is desirable for higher crop production. और जो फार्म यार्ड मैन्योर है, इट कंसिस्ट ऑफ काउ डंग और जो डेड डिकेइंग ग्रासेस हैं, क्रॉप रिमेन्स हैं, they so these decaying organic matter is used as manure. The soil with poor nitrogen content require 20 to 25 kg nitrogen per hectare, or we can use diammonium phosphate at a rate of 100 kg per hectare in nitrogen and phosphate deficient soil. So जो soil poor है नाइट्रोजन और phosphate में, उसमें हम diammonium phosphate salt भी यूज़ कर सकते हैं और इसका रेशो रहता है 100. However, nitrogen fertilizers application has adverse effect on the plants after nodulation. जो अगर हम नॉडुलेशन के बाद भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं, सो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं. इट मीन्स इट इज़ हार्मफुल और जो क्रॉप है वो डैमेज होती है एंड द यील्ड इज़ रिड्यूस्ड. Next comes production. Chickpea contributes about 50% of the total pulse production in India. और जो एक वेल मैनेज्ड क्रॉप है किस एक हेक्टेयर में, फ्रॉम दैट क्रॉप वी कैन गेट 20 to 25 क्विंटल्स ऑफ yield. India ranks first in the world in chickpea production. Current world production of chickpea is 12.1 million tons, and India contributes approximately 64% of the global chickpea production. And main chickpea producing states in India are Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, and Gujarat. So this is the pie chart which shows this total production or state-wise share of total production in India. High-yielding cultivars. Several different cultivars are produced by various plant breeders in the country, and some of the important cultivars which are listed below. Firstly, we have desi chickpea varieties, like we have Avrodhi Pant G186, Gaurav, then comes Uday KP75, Gora Hisari K850, then comes Pusa 209, Pusa 256, Pusa 362, Pusa 372, Haryana Chana 1, and H355, and Radhe. So these are some important chickpea high yielding varieties of desi chickpea. Next, we have Kabuli chickpea varieties like C104, I144, L550, Pusa 1003, Pusa 053, and Sadabahar. So these are some important cultivar or varieties of Kabuli chickpea. Next comes utilization of gram. Gram is very important crop in India, and it contributes about 50% of the total pulse production in India. It has various uses, and some of these uses are listed below. Firstly, as cooked pulse. इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन है चिकपी का, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कुक्ड पल्स. और इसमें अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें, चिकपीज़ आर कोलेस्ट्रॉल फ्री, इट इज़ हाई, और इसमें जो फाइबर कंटेंट है दैट इज़ वेरी हाई, लो सोडियम, हाई प्रोटीन. And chickpeas are an excellent source of vitamin B6, folate, vitamin C, and soluble fibers. और जो पर कप कैंड चिकपी है उसमें 35 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 110 कैलोरीज इसमें एनर्जी होती है, एंड 3.8 ग्राम्स ऑफ फैट, 10.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एंड 9.6 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स. सो ये इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट है जो उसमें प्रेजेंट होता है. इट कैन बी यूज एज ए होल और एज ए स्प्लिट पल्स. इसे हम या तो होल दाल यूज़ करते हैं या फिर इसे स्प्लिट पल्स की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. चिकपी इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Next comes sprouted grams. So these are the germinating seeds which are rich source of proteins, और as a salad भी इसको यूज़ किया जाता है. It is also preferred for the person who is doing physical exercises, extreme physical exercises. It is a good source of veg protein, plant protein. Chickpea seeds are sprouted and eaten raw and considered to have many health benefits. Then comes traditional foods. The green seeds of chickpea are used as vegetable. Then we have one famous dish in North India जिसे कहते हैं छोले भटूरे. It is very famous in North India. और ये जो डिश है मोस्टली कंज्यूम की जाती है नॉर्थ इंडिया में. देन देर इज़ वन अदर डिश दैट इज़ ढोकला. इट इज़ द फेमस गुजराती स्नैक.
and is prepared from the gram flour, जिसे बेसन कहते हैं. Then besan is also used to prepare rotis. It is mixed with other flours और जिससे रोटी prepare की जाती है. So this is the flour of chickpea. Next, besan is also used as a batter for making pakoras or sweet dish, sweet, that is besan barfi. It is prepared from this besan. Then snacks, roasted dry grams is very common in Indian market and is used as snack. And boiled and salted chickpea is used as light refreshment. So these are some important uses of chickpea. So this was all about for our today's discussion. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.